Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video tutorial, we're going to talk about the mandible, which is by far the largest bone of the facial skeleton, and we'll see its various structures, its parts, and the various foramina and other structures which are present on its surface. So this is how the mandible looks like. It is also called as a jawbone, and we'll be dividing it into a number of structures. First of all, this is called as a body of mandible. Then upward projection, the extra rectangular projection is called as a ramus. Then still upwards, there's a coronoid and a condylar process on mandible. The area where the ramus meets the body of mandible is called as the angle of mandible, and we'll be discussing all these structures separately. First of all, let's talk about the body of mandible, and this is basically the outer aspect of mandible, and let's see that which structures are present on it. In developmental period, there are basically two aspects of the mandible, left and right, which get united at the center, or in adults we only find a ridge there in the center. This is called as the symphysis mentae, and this is actually representing the developmental union of the left and right parts of the mandible. So in the midline we'll be finding an upward ridge called as the symphysis mentae. Then on the lower part of the symphysis mentae there will be a projection, a protuberance called as the mental protuberance. Okay, and on each side of the mental protuberance there will be two still more tubercles called as the mental tubercles. So there's a ridge called as symphysis mentae, then a triangular protuberance called as the mental protuberance, and on infralateral aspect of on both sides of the mental protuberance we'll be finding the mental tubercles. Okay, then we'll talk about the oblique line. Oblique line is basically extending from the anterior border of the ramus of the mandible, and it passes downwards and towards the mental tubercles. So this portion, which is you can say a sharp ridge, a sharp line on the surface of body of mandible, is called as the, ये तो है ना anterior border of ramus of mandible, but this line on the body of mandible is called as the oblique line of mandible, जो आगे तक extend करती है till the mental tubercle. Okay, then we have mental foramen. It lies at the interval between the premolar tooth. यहाँ पर just below the premolar tooth we have the mental foramen. एक mandibular foramen भी होता है, वो यहाँ पर inside the medial surface of mandible present होता है यहाँ कहीं. But right now we are concerned with the structures on the body of mandible, and we are seeing the mandibular foramen. Okay, then we talk about the incisive fossa. Incisive fossa basically present just beneath the incisor tooth. Here एक depression होता है on both side. This is called as incisive fossa. Definitely ये भी किसी न किसी मसल को attachment दे रहा होगा, जो हम आगे attachments of mandible पर देख लेंगे. ओके, अनदर थिंग इज़ दैट, अच्छा अब इसकी इनर सर्फेस की बात करते हैं कि इनर सर्फेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द माइलोहायोइड लाइन. अच्छा, इन फिर अगर हम इसके मीडियल सर्फेस पे, इसके इनर सर्फेस पे देखें तो हमें एक लाइन सी नज़र आती है, उसे हम कहते हैं माइलोहायोइड लाइन, बिकॉज इट्स गिविंग ओरिजिन और बेसिकली अटैचमेंट टू द माइलोहायोइड मसल. देन वी हैव 4 ट्यूबरकल्स कॉल्ड एज द जीनियल ट्यूबरकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन इन द मिड लाइन के इन्फीरियर एस्पेक्ट. हमें 4 ट्यूबरकल्स मिलते हैं, 2 सुपीरियर 2 इन्फीरियर, और 2 लेफ्ट और 2 राइट tubercles. These are called as the superior and inferior genial tubercles. So we have the milohyoid line and we have the genial tubercles, जो basically mid line के inferior aspect पे present हैं. अच्छा जी, देन हम बात करते हैं अबाउट द सबमैंडिबुलर फोसा एंड द सबलिंगुअल फोसा. बेसिकली दीज आर द फोसा फॉर द ग्लैंड्स, द सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. जस्ट बिलो द माइलोहायोइड लाइन वी हैव दिस होल रीजन इज कॉल्ड द सबमैंडिबुलर फोसा, एंड जस्ट अबव इट वी हैव द sublingual fossa which will be lodging the sublingual and the submandibular glands respectively. अच्छा जी, देन वी हैव अनदर, बस ये सारे तो हो गए ना, जीनियल ट्यूबरकल्स हो गए, एंड या फोसे वगैरह भी हो गए. देन वी हैव अनदर पार्ट कॉल्ड एज द माइलोहायोइड ग्रूव. ओके, अगर हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रेमस की बात करें ना, तो यहाँ पर हमें एक फोरामेन नजर आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैंडिबुलर फोरामेन. बाहर तो जो था वो था हमारा मेंटल फोरामेन, जो यहाँ कहीं प्रेजेंट था, है ना, इस जगह पे बिलो द थर्ड मोलर टूथ. इस बेसिकली इस मैंडिबुलर फोरामेन में से एक कनाल पास करती है, जो कि बाहर हमारे मेंटल फोरामेन पे जाके खुलती है. एंड फिलहाल हमें जस्ट इतना ही पता है दैट हियर इज द फोरामेन कॉल्ड एज द मैंडिबुलर फोरामेन. अब मैंडिबुलर फोरामेन के नीचे से हमें एक लाइन पास करती हुई नजर आती है, ग्रूव पास करता हुआ नजर आता है, हम कहते हैं माइलोहायोइड ग्रूव. अच्छा, ये तो थी ना माइलोहायोइड लाइन, दिस इज अ ग्रूव, दिस नॉट अ लाइन. ये तो एक हल्का सा रिज था, बट दिस इज अ प्रॉपर ग्रूव जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन डाउनवर्ड्स अप टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ द माइलोहायोइड line, and this is called as a माइलोहायोइड groove. Okay, extending from the mandibular foramen. अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे और क्या हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है वो भी देख लेते हैं. कहा गया कि जो बेस का, अच्छा ये जो लोअर एस्पेक्ट है ना बॉडी ऑफ मैंडिबल, हम कहते हैं बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, और जो अपर एस्पेक्ट हम कहते हैं एल्व्यूलर पार्ट ऑफ मैंडिबल या एल्व्यूलर बॉर्डर, बिकॉज इट इज़ लॉजिंग द एल्व्यूलर सॉकर्स ऑफ द टीथ.
अच्छा जी, just below the genial tubercles we will be finding a fossa on two sides. These fossa are called as digestive fossa because this will be giving attachment to the anterior belly of digestive muscle. Okay, हमें ये भी बात याद रखनी है कि inside of the base के inferior aspect पे will be finding the digestive fossa just below the these genial tubercles. अच्छा जी, मैक्सिमम चीज़ें तो हो गई हैं. एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन वी हैविंग अ टंग शेप प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज अ लिंगुला. सो दिस इज अ लिंगुला, दिस इज द माइलोहाइड ग्रूव, दिस इज अ माइलोहाइड लाइन, सबलिंगुअल फोसा, सबमैंडिबुलर फोसा, जीनियल ट्यूबरकल्स एंड द डाइजेस्टिव फोसे. अच्छा जी, फिलहाल बस इतना जानना ज़रूरी है. अब ये बात होंगी सारी बॉडी की. अब हम इसकी रेमाई की बात कर लेते हैं कि इसके रेमाई कैसे दिखते हैं. तो दिस अब हमने ना मैंडिबल को हाफ काटा हुआ, हम इनसाइड ऑफ द मैंडिबल देख रहे हैं, उसके बेसिकली मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस मैंडिबल को देख रहे हैं. एंड वी आर अप्रिशिएटिंग दैट ईच मैंडिबल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्फेसिस, एक अंदर वाला बाहर, दैट इज अ मीडियल एंड अ लेटरल सर्फेस. ठीक है, 4 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है, 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर बीक शेप प्रोसेस, हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, और एक होता है पोस्टीरियर थोड़ा राउंडेड सा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस. ओके जी, अब हम इसके मीडियल सर्फेस की बात करते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैंडिबुलर फोरामेन इसको पीछे देखा था, जो कि आगे जाकर एक मैंडिबुलर कनाल बना रहा था, जो वो मैंडिबुलर कनाल जो आगे जाके ओपन किस में होगा, मेंटल फोरामेन में. तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे पास एक मैंडिबुलर फोरामेन जो कि कनाल के ज़रिए ओपन हो रहा है इनटू द मेंटल फोरामेन, और इस कनाल का हम नाम देते हैं मैंडिबुलर कनाल. फाइन. देन वी हैव एंटीरियर मार्जिन, दिस इज़ एंटीरियर मार्जिन ऑफ इट, है ना, इट इज़ शार्प. एंड अगर बात की जाए मैंडिबुलर फोरामेन की, तो उसके सामने मैंने पहले बताया था कि एक टंग शेप प्रोजेक्शन होती है इनसाइड ऑफ मैंडिबल पे, जिसे हम कहते हैं लिंगुला. दिस इज़ अ लिंगुला. ठीक है, एंड कहा जाता है कि जो लिंगुला की टंग इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेड ऑफ द कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ मैंडिबल, उसके रेमस बेसिकली. देन वी हैव द माइलोहाइड ग्रूव, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट इज़ एक्सटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, और ऑन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबुलर वो माइलोहाइड लाइन एक्सटेंड करता है. कौन? माइलोहाइड ग्रूव. अच्छा जी, ये बात भी हो गई. देन द अपर बॉर्डर ऑफ रेमस इज क्वाइट थिन एंड कर्व्ड एंड इज फॉर्मिंग द मैंडिबुलर नॉच. सो दिस नॉची एरिया इज कॉल्ड एज अ मैंडिबुलर नॉच, जिसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाया हुआ है कॉन्डाइलर पार्ट ने और एंटीरियर बॉर्डर बनाया हुआ है कोरोनॉइड पार्ट ने. ओके जी. Then we see that the posterior border of this ramus is getting continuous with the base of mandible at the angle of mandible, है ना, ऐसा ही है ना. अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें होगी. then we have to talk about this अच्छा, इसको हम आगे देख लेते हैं. वी हैव द 2 नॉचेस, द कोरोनॉइड नॉच एंड सॉरी 2 processes, the coronal process and the condylar process. The coronal process is rather triangular, as you can see it's called beak shaped and is forming the anterior boundary of the mandibular notch. Then we have the condylar process. It's quite like, you can say, it having a head, rounded head, and a neck. Okay, and the neck is basically forming the posterior boundary of the mandibular notch. अच्छा जी, बाकी सब हो गया. Then they say that there is a fossa called as the pterygoid fossa which is present on the anterior aspect of the neck of mandible, right somewhere here. वो मैं दिखा देती हूँ. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो कि यहाँ पे एक फोरामेन है कॉल्ड एज मैंडिबुलर फोरामेन, जिसके नीचे एक ग्रूव एक्सटेंड करता है, द माइलोहाइड ग्रूव, जो कि अप टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ द माइलोहाइड लाइन एक्सटेंड करता है. ओके जी, नेक्स्ट वी आर गोना बी सीइंग अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द लिंगुला. अच्छा, लिंगुला तो हो गया ना, ठीक है. देन वी हैव अनदर, ओके, एक चीज़ और रहेगी थी, टेरिगोड फोसा. मैं अच्छा सा दिखा देती हूँ, कभी दिख रहा है तो. yes, in this image, yes, in the internal aspect of the or the middle aspect of neck will be found in the pterygoid fovea या pterygoid fossa. Okay, so that's all about the structure of mandible. In the next video we'll talk about its several attachments and the structures which are passing through its various foramina. Thank you.